ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چنگیز خان کون تھا اور اس کی وفات کیسے ہوئی۔ ناظرین اکرام، 31 مئی 1162 عیسوی کو مشرقی ایشیا کے وسیع و عریض ملک منگولیا میں بورجیگن قبیلے کے سردار یسوگئی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ یسوگئی کو دو خوشیاں اکٹھی ملی تھی۔ بیٹے کی پیدائش سے پہلے اس نے اپنے ایک دشمن تاتاری سردار تموجن کو گرفتار کیا تھا۔ منگولوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے گرفتار دشمن کا نام نئے پیدا ہونے والے بچے کو دیتے تھے۔ مشہور تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے دشمن کی خوبیاں اس بچے میں منتقل ہو جائیں گی۔ یہی سوچ کر یسوگئی نے اپنے بیٹے کا نام دشمن سردار کے نام پر تموجن ہی رکھ دیا۔ اس کے بعد سردار تموجن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ واقعی اس کی خوبیاں اس بچے میں منتقل ہو جائیں۔ ویسے اس بچے کے بارے میں پہلے ہی قبیلے کے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بچے کی پیدائش کے وقت اس بچے کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر قبیلے کے بوڑھے بزرگوں نے یہ کہا کہ یہ لڑکا بہت بڑا فاتح بنے گا۔ اس نو مولود کا نام تموجن رکھا گیا تھا، جس کو دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، اور وہ بچہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنا۔ ننھے چنگیز خان کو منگول رواج کے مطابق گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر بنا دیا گیا۔ جب تموجن 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ سردار یسوگئی کو کسی نے زہر دے دیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان اور اس کے گھر والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کے قبیلے والوں نے چنگیز خان کو اس کی ماں اور باقی بھائیوں کے ساتھ قبیلے سے نکال دیا۔ قبیلے کا کوئی اور طاقتور خاندان سردار بن گیا۔ چنگیز خان اور اس کے گھر والے تنہا رہ گئے۔ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے چنگیز خان لکڑی اور ہڈیوں سے ہتھیار بنا کر جانوروں کا شکار کرتا تھا، مگر بچپن سے ہی وہ اتنا ظالم تھا کہ اپنے ہی ایک سوتیلے بھائی بیتر کو مچھلی چرانے پر تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی طاقت اور بے خوفی سے لوگ ڈرنے لگے۔ اس کے پرانے قبیلے میں جس خاندان نے ان سے سرداری چھینی تھی، انہوں نے چنگیز خان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان کے گھر والے جنگل میں خیمہ لگا کر رہنے لگے۔ دشمنوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ چنگیز خان وہاں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا اور کئی روز ایک جنگل میں چھپا رہا۔ چند روز بعد اس نے سوچا کہ دشمن اب جا چکے ہوں گے، چنانچہ وہ جنگل سے نکلا، لیکن دشمنوں نے اسے پکڑ لیا۔ چنگیز خان کو پکڑ کر یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس آئے اور جشن منانے لگے۔ ان کو غافل دیکھ کر چنگیز خان بھاگ نکلا۔ قبیلے میں چنگیز خان کے کچھ ہمدرد بھی تھے، جو سب اس کے باپ یسوگئی کے دوست رہے تھے۔ ایسے ہی ایک ہمدرد نے چنگیز خان کو پناہ دی اور اسے ایک چھکڑے میں اون کے نیچے چھپا دیا۔ دشمن اسے تلاش کرتے رہے مگر مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب چنگیز خان اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلا گیا۔ 16 برس کی عمر میں اس نے اپنی منگیتر بورتھے سے شادی کر لی، مگر کچھ دن بعد اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے ایک دشمن قبیلے مرکر نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی بیوی بورتھے کو اغوا کر لیا۔ چنگیز خان چھپتے چھپاتے اپنے باپ کے ایک پرانے دوست اون خان کے پاس پہنچا۔ اون خان ایک طاقتور منگول سردار تھا۔
उसने अपनी फौज चंगेज़ खान के साथ भेज दी। चंगेज़ खान ने साइबेरिया तक मरकर कबीले का पीछा किया और इस पर हमला करके अपनी बीवी बोरथे को आज़ाद करवा लिया। इस वक्त बोरथे मां बनने वाली थी। चंगेज़ खान को मालूम था कि होने वाला बच्चा इसका नहीं है, बल्कि उस कबीले के किसी शख्स का है जिस कबीले ने बोरथे को अगवा किया था। फिर भी चंगेज़ खान को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी कि उसने बोरथे के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाया। और जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो चंगेज़ खान ने उसे जोजी खान का नाम दिया और अपना बेटा बना लिया। बोरथे को छुड़ाने की जंग के दौरान ओन खान और चंगेज़ खान के बचपन के दोस्त जमोका ने उनका बहुत साथ दिया। जमोका चंगेज़ खान का लंगोटिया दोस्त था। दोनों ने बचपन में एक दूसरे का खून भी पिया हुआ था ताकि मंगोल रिवाज के मुताबिक दोनों एक दूसरे के भाई भाई बन जाए। नाज़रीन इकराम, बोरथे को छुड़ाने के बाद चंगेज़ खान ने जमोका और ओन खान की मदद से अपने कबीले की सरदारी भी वापस ले ली। लेकिन इसके बाद चंगेज़ खान की जमोका और ओन खान दोनों से दुश्मनी हो गई। अब चंगेज़ खान खुद एक बड़ा और ताकतवर सरदार बनना चाहता था। उसके ख्वाब बड़े बड़े थे। उधर जमोका और ओन खान भी ऐसे ही ख्वाब देख रहे थे। इसलिए तीनों में टकराव पैदा हो गया। चंगेज़ खान ने जमोका और ओन खान दोनों को ही हरा दिया। ओन खान शिकस्त के बाद फरार हुआ और किसी दुश्मन के हाथों मारा गया। जमोका को इसके कुछ साथी इनाम के लालच में पकड़कर चंगेज़ खान के पास ले गए, मगर चंगेज़ खान ने उनको इनाम देने की बजाय कहा कि तुमने जमोका से गद्दारी की है, कल को मुझे भी धोखा दोगे। फिर उसने उन लोगों को कत्ल करवा दिया और जमोका को उसने आखिरी मर्तबा पेशकश की कि मेरे साथ मिल जाओ, मगर जमोका ने इनकार कर दिया और कहा कि जिस तरह आसमान में दो सूरज नहीं रह सकते, इसी तरह ज़मीन पर दो खान नहीं रह सकते। तुम मुझे कत्ल कर दो, मगर ख्याल रखना कि मेरा खून ना बहे। चंगेज़ खान के हुक्म पर जमोका को रीढ़ की हड्डी तोड़कर कत्ल कर दिया गया। जमोका और ओन खान को रास्ते से हटाकर चंगेज़ खान मंगोलिया का बादशाह बन गया और बहुत बड़ी सल्तनत कायम करने के लिए अपने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, चंगेज़ खान ने सबसे पहले अपने पड़ोसी मुल्क चीन पर हमला किया। चंगेज़ खान ने अपने सिपाहियों को बताया कि नीला आसमान जिसकी हम पूजा करते हैं उसने मुझे फ़तह की बशारत दी है। चंगेज़ खान अपनी फ़ौज के साथ चीन पहुंचा और शुमाली चीन पर कब्ज़ा कर लिया। चीन पर उस वक़्त चिन ख़ानदान की हुकूमत थी। उसका दारुल हुकूमत योनलू था, जो इसी जगह वाक़या था जहां आजकल चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग वाक़या है। इस शहर को बचाने के लिए दीवार चीन बनाई गई थी। चंगेज़ खान ने दीवार चीन को बाईपास करके योंगडो पर हमला कर दिया, उसका मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 1 साल तक जारी रहा। मुहासरे की वजह से शहर में खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। भूख और बीमारी ने हज़ारों लोगों की जानें ले लीं। चीनी शहनशाह भी एक ऐसे मौका पर शहर से फरार हो गए और किसी दूसरे शहर चले गए, क्योंकि शहर में हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। तो लोगों ने शहर के दरवाज़े खोल दिए। चंगेज़ खान और उसकी फ़ौज ने शहर में दाखिल होकर जुल्म की इंतहा कर दी। इमारतों को आग लगा दी। शहर के लाखों मकीनों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए गए। चीन से फारग होकर
चंगेज़ खान ने वस्त एशिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत ख्वारिज़मी सल्तनत पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए उसने अपने जासूस ताजरों के बेस में ख्वारिज़मी सल्तनत में भेजना शुरू कर दिए। ये जासूस मुसलमानों की फ़ौजी ताकत की पूरी खबरें चंगेज़ खान तक पहुंचा रहे थे। उनकी ज़बानी चंगेज़ खान जान गया कि मुसलमान तो आपस में दस्तगिरीबान हैं, उनके पास बैरूनी हमलावरों से लड़ने की ताकत ही नहीं बची। ख्वारिज़मी सल्तनत में उस वक़्त अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह की हुकूमत थी। उसके साथ उसका बेटा जलालुद्दीन भी था। जलालुद्दीन की बहादुरी और काबिलियत के चर्चे दूर दूर तक थे। चंगेज़ खान भी जान गया था कि अगर कोई मुसलमान उसकी टक्कर का है तो वो है जलालुद्दीन। इसलिए वो जलालुद्दीन को ज़िंदा पकड़ना चाहता था। चंगेज़ खान और मुसलमानों में जंग यूं शुरू हुई कि ख्वारिज़म के शहर अतरार के गवर्नर ने मंगोल जासूस पकड़ लिए और 450 जासूसों को कत्ल कर दिया। चंगेज़ खान उन जासूसों को ताजर कहता था। उसने अलाउद्दीन पर दबाव डाला कि या तो मेरे ताजरों के कातलों को सज़ा दो या फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अलाउद्दीन को चंगेज़ खान का ये हुक्म नागवार गुजरा। उसने चंगेज़ खान के सफ़ीर को बुलाकर कत्ल कर दिया और वफद के बाकी लोगों की दाढ़ियाँ जलवा दी। जब चंगेज़ खान को इस बात का इल्म हुआ तो उसे जंग शुरू करने का बहाना मिल गया। 1219 ईस्वी में चंगेज़ खान मुस्लिम सल्तनत पर हमलावर हो गया। 2 बरस के अंदर उसने इस्लामी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया। बखारा, समरकंद, बलख जैसे शहरों की ईंट से ईंट बजा दी गई। लाखों मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह चंगेज़ खान जैसा ज़बरदस्त कमांडर नहीं था। चंगेज़ खान की ताकत देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने एक गलती ये की कि अपनी फ़ौज के मुख्तलिफ हिस्से दीगर शहरों की तरफ रवाना कर दिए। चंगेज़ खान ने हर उस शहर का अलग अलग मुहासरा करके उसे फतह कर लिया। नाज़रीन इकराम, अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह फरार हो गया और बहर कैस्पियन के एक जजीरे पर मायूसी के आलम में बीमार होकर मर गया। अलाउद्दीन की मौत के बाद मुसलमानों की कमांड उसके बेटे जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के हाथ में आ गई। ये वो अजीम सिपह सालार था जिससे चंगेज़ खान भी खौफज़दा रहता था। वो अपने साथियों के साथ अफ़गानिस्तान रवाना हो गया क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था और मुसलमानों का अहम मोर्चा बन सकता था। उन्हें मालूम था कि अफ़गान कौम एक खुददार कौम है और उसने कभी कोई जंग नहीं हारी। मंगोलों को अफ़गान जंगजू ही बराबर की टक्कर दे सकते हैं। ये सोचकर जलालुद्दीन वस्त एशिया से अफ़गानिस्तान पहुँचे। रास्ते में उन्होंने कई बार मंगोलों पर हमला किया और चंगेज़ खान के कई दस्तों को शिकस्त दी। एक हमला में तो 700 मंगोल भी मारे गए। जब वो अफ़गानिस्तान पहुँचे तो उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक हज़ारों अफ़गान मंगोलों के ख़िलाफ़ जहाद के लिए उनके परचम तले इकट्ठे हो गए। जलालुद्दीन ने 80,000 की फ़ौज जमा कर ली और मंगोल फ़ौज का इंतज़ार करने लगे। फिर चंगेज़ खान का एक कमांडर 40,000 फ़ौज लेकर जलालुद्दीन से लड़ने आया। अफ़गान सूबे परवान में मुकाबला हुआ। ये अफ़गानों और मंगोलों की पहली जंग थी। अफ़गानों ने बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि मंगोलों के पसीने छूट गए। वो मंगोल जो कभी नहीं हारे थे, इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई और वो भाग निकले।
मैदान जंग अल्लाह अकबर के नारों से गूंजने लगा। जलालुद्दीन को शानदार फतह मिली। अब वो अपनी फ़ौज के साथ चंगेज़ खान से मुकाबले के लिए तैयार था, लेकिन इस मौका पर उनके कई सरदारों ने गद्दारी की और उनका साथ छोड़ दिया। इधर चंगेज़ खान की फ़ौज जलालुद्दीन का पीछा कर रही थी। जलालुद्दीन अपनी बाकी फ़ौज के साथ हिंदुस्तान चले गए। दूसरी तरफ चंगेज़ खान को मंगोलों की पहली शिकस्त की खबर मिली तो वो गज़बनाक हो गया और उसने नीले आसमान की कसम खाई कि वो जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को शिकस्त ज़रूर देगा। उसने अपनी पूरी फ़ौज के साथ जलालुद्दीन का ताक़ब किया और दरियाए सिंध के किनारे तक पहुंच गया। यहाँ जलालुद्दीन ने अपनी बची खुची फ़ौज के साथ चंगेज़ खान का यादगार मुकाबला किया। चंगेज़ खान के हज़ारों मंगोल सिपाही मारे गए। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह खुद तलवार हाथ में लिए दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। उनकी बहादुरी देखकर चंगेज़ खान हैरान व परेशान रह गया। अगर जलालुद्दीन के साथियों ने उनका साथ ना छोड़ा होता तो इस दिन चंगेज़ खान को ज़रूर शिकस्त हो जाती। लेकिन क्या करें कि मुसलमानों को हमेशा से गद्दारों के हाथों ही शिकस्त हुई है। जलालुद्दीन की कम फ़ौज भी मंगोलों का ज़्यादा देर तक मुकाबला ना कर सकी और उसे शिकस्त हो गई। जलालुद्दीन के बेटों और ख़ानदान के बहुत से लोगों को मंगोलों ने कत्ल कर दिया, लेकिन इस मौका पर भी जलालुद्दीन ने बहादुरी की लाजवाब दास्तान रकम कर दी। वह अपने घोड़े समेत दरिया सिंध में कूद पड़े। दरिया में तुग़यानी थी, किसी को यकीन ना था कि वो ज़िंदा बच जाएंगे। मंगोल तो इतना डरे हुए थे कि अपने घोड़े तो दरिया के करीब भी ना ले जा रहे थे। लेकिन जलालुद्दीन जैसा बुलंद हिम्मत और दलेर मुसलमान घोड़े समेत दरिया में आगे बढ़ता गया। एक मंगोल ने तीर से उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन चंगेज़ खान ने मना कर दिया। चंगेज़ खान ने यह भी कहा कि काश ये मेरा बेटा होता, ये इतना बहादुर था। जलालुद्दीन ने दिल्ली के सुल्तान अल्तमश से मदद मांगी, लेकिन वहाँ से भी इनकार हो गया। लेकिन जलालुद्दीन ने हिम्मत ना हारी। ये वो वक़्त था जब सारे मुसलमान बादशाह चंगेज़ खान और उसकी औलाद की खुशामद कर रहे थे। जलालुद्दीन चाहते तो वो भी मालो दौलत या हुकूमती ओहदा के लिए चंगेज़ खान की तरफ से लड़ना शुरू कर देते, लेकिन वो दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी की खातर अपना ज़मीर बेचने पर तैयार नहीं हुए। इन्हें जब भी मौका मिला वो मंगोलों के ख़िलाफ़ जहाद करते रहे। वो जॉर्जिया भी गए और वहाँ भी अपनी हुकूमत कायम की, मगर मंगोलों ने वहाँ भी उनको चैन से बैठने नहीं दिया और इन्हें वहाँ से भी निकलवा दिया। मंगोलों के दबाव पर बगदाद के खलीफा समेत कई मुसलमान बादशाह जलालुद्दीन के ख़िलाफ़ अपने अवाम को भड़काने लगे, लेकिन जलालुद्दीन की मकबूलियत कम न हुई। मुसलमानों का ये गुमनाम हीरो 1231 ईस्वी में मंगोलों से आखिरी लड़ाई के बाद लौट रहा था कि इन्हें रास्ते में कुछ हमलावरों ने शहीद कर दिया। इस्लामी सल्तनत पर हमला के चंद सालों बाद चंगेज़ खान की भी मौत वाक़या हो गई। 65 साल की उम्र में वो चीन चला गया था। वहीं वो घोड़े से गिरकर ज़ख्मी हुआ। ये ज़ख्म बिगड़ते बिगड़ते इसकी मौत का सबब बन गए। चंगेज़ खान अपनी ज़िंदगी बेगुनाहों के खून से होली खेलते हुए गुजारी थी। उसकी मौत के बाद उसके जनाजे पर भी लोगों को मारा गया। उसकी लाश को मंगोलिया ले जाया गया और किसी नामालूम जगह पर उसको दफन कर दिया गया ताकि किसी को इसकी कब्र का इल्म ना हो सके। फिर लाश ले जाने वाले हर शख्स को भी कत्ल कर दिया गया ताकि वो कब्र का राज भी वहीं ख़त्म हो जाए।
चंगेज़ खान की कब्र आज तक किसी को मालूम नहीं हो सकी। चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में 1,20,00,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका फ़तह किया और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। आज तक कोई फ़ातेह इतना बड़ा इलाका फ़तह नहीं कर सका, लेकिन चंगेज़ खान को ज़िंदगी का बस एक ही पछतावा था कि वो जलालुद्दीन को ज़िंदा ना पकड़ सका। जलालुद्दीन शहीद हो गए, लेकिन मंगोलों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने जिद्दोजहद जारी रखी और फिर चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान को ममलूकों ने ऐसी शिकस्त दी कि मंगोल हमेशा के लिए ख़त्म हो गए।